या एचकेएल एजेकियल 35 चैप्टर 36 चैप्टर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। एजेकियल 35 चैप्टर 36 चैप्टर। पवित्र आत्मा हमें आप वचन सिखाइए, अज्ञानता हमसे दूर कीजिए। विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हमें ईश्वरीय रचना में ढल कर लेकर आइए, हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। यीशु नासरी के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। चैप्टर 35 गॉड्स जजमेंट ऑफ माउंट सेयर। फर्स्ट वर्स से, Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Mount Seir, and prophesy against it, and say unto it, Thus saith the Lord God, Behold, O Mount Seir, I am against thee, and I will stretch out mine hand against thee, and I will make thee most desolate. I will lay thy cities waste, and thou shalt be desolate, and thou shalt know that I am the Lord. Because thou hast had a perpetual hatred, and hast shed the blood of the children of Israel by the force of the sword in the time of their calamity, in the time that their iniquity had an end. Therefore, as I live, saith the Lord God, I will prepare thee unto blood, and blood shall pursue thee. Sith thou hast not hated blood, even blood shall pursue thee. Thus will I make Mount Seir most desolate, and cut off from it him that passeth out, and him that returneth. And I will fill his mountains with his slain men. In thy hills and in thy valleys and in all thy rivers shall they fall that are slain with the sword. I will make thee perpetual desolations, and thy cities shall not return, and ye shall know that I am the Lord, because thou hast said, These two nations and these two countries shall be mine, and we will possess it, whereas the Lord was there. Therefore, as I live, saith the Lord God, I will even do according to thine anger, and according to thine envy which thou hast used out of thy hatred against them, and I will make myself known among them when I have judged thee. And thou shalt know that I am the Lord, and that I have heard all thy blasphemies which thou hast spoken against the mountains of Israel, saying, They are laid desolate, they are given us to consume. Thus with your mouth ye have boasted against me, and have multiplied your words against me. I have heard them. Thus saith the Lord God, when the whole earth rejoiceth, I will make thee desolate, as thou didst rejoice at the inheritance of the house of Israel. Because it was desolate, so will I do unto thee. Thou shalt be desolate, O Mount Seir, and all Edomia, even all of it, and they shall know that I am the Lord. Chapter 36 Israel graciously comforted. First verse, Also thou son of man, prophesy unto the mountains of Israel, and say, Ye mountains of Israel, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God, because the enemy hath said against you, Aha, even the ancient high places are ours in possession. Therefore prophesy and say, Thus saith the Lord God, because they have made you desolate and swallowed you up on every side, that ye might be a possession unto the residue of the heathen. And ye are taken up in the lips of talkers, and are as infamy of the people. Therefore, ye mountains of Israel, hear the word of the Lord God. Thus saith the Lord God to the mountains, and to the hills, to the rivers, and to the valleys, to the desolate wastes.
and to the cities that are forsaken, which became a prey and derision to the residue of the heathen that are round about. Therefore, thus saith the Lord God, surely in the fire of my jealousy have I spoken against the residue of the heathen, and against all Idumea, which have appointed my land into their possession, with the joy of all their heart, with despiteful minds to cast it out for a prey. Prophesy therefore concerning the land of Israel, and say unto the mountains and to the hills, to the rivers and to the valleys, thus saith the Lord God, behold, I have spoken in my jealousy and in my fury, because ye have borne the shame of the heathen. Therefore, thus saith the Lord God, I have lifted up mine hand. Surely the heathen that are about you, they shall bear their shame. But ye, O mountains of Israel, ye shall shoot forth your branches and yield your fruit to my people of Israel, for they are at hand to come. For behold, I am for you, and I will turn unto you, and ye shall be tilled and sown. And I will multiply men upon you, all the house of Israel, even all of it, and the cities shall be inhabited, and the wastes shall be builded. And I will multiply upon you man and beast, and they shall increase and bring fruit, and I will settle you after your old estates, and will do better unto you than at your beginnings, and ye shall know that I am the Lord. Yea, I will cause men to walk upon you, even my people Israel, and they shall possess thee, and thou shalt be their inheritance, and thou shalt no more henceforth bereave them of men. Thus saith the Lord God, because they say unto you, thou land devourest up men, and hast bereaved thy nations. Therefore thou shalt devour men no more, neither bereave thy nations any more, saith the Lord God. Neither will I cause men to hear in thee the shame of the heathen any more. Neither shalt thou bear the reproach of the people any more. Neither shalt thou cause thy nations to fall any more, saith the Lord God. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, when the house of Israel dwelt in their own land, they defiled it by their own way, and by their doings their way was before me as the uncleanness of a removed woman. Wherefore I poured my fury upon them for the blood that they had shed upon the land, and for their idols wherewith they had polluted it. And I scattered them among the heathen, and they were dispersed through the countries according to their way and according to their doings I judged them. And when they entered unto the heathen, whither they went, they profaned my holy name. When they said to them, These are the people of the Lord, and are gone forth out of his land. But I had pity for mine holy name, which the house of Israel had profaned among the heathen, whither they went. Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord God, I do not this for your sakes, O house of Israel, but for mine holy name's sake, which ye have profaned among the heathen, whither ye went. And I will sanctify my great name, which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them. And the heathen shall know that I am the Lord, saith the Lord God, when I shall be sanctified in you before their eyes. For I will take you from among the heathen, and gather you out of all countries, and will bring you into your own land. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness.
and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. And ye shall dwell in the land that I gave to your fathers, and ye shall be my people, and I will be your God. I will also save you from all your uncleannesses, and I will call for the corn and will increase it, and lay no famine upon you, and I will multiply the fruit of the tree and the increase of the field, that ye shall receive no more reproach of famine among the heathen. Then shall ye remember your own evil ways and your doings that were not good, and shall loathe yourselves in your own sight for your iniquities and for your abominations. Not for your sakes do I this, saith the Lord God. Be it known unto you, be ashamed and confounded for your own ways, O house of Israel. Thus saith the Lord God, in the day that I shall have cleansed you from all your iniquities, I will also cause you to dwell in the cities, and the wastes shall be builded, and the desolate land shall be tilled, whereas it lay desolate in the sight of all that passed by. And they shall say, this land that was desolate is become like the garden of Eden, and be waste and desolate, and ruined cities are become fenced and are inhabited. Then the heathen that are left round about you shall know that I, the Lord, build the ruined places and plant that was desolate. I, the Lord, have spoken it, and I will do it. Thus the Lord God, I will yet for this be inquired of by the house of Israel, to do it for them. I will increase them with men like a flock, as the holy flock, as the flock of Jerusalem in her solemn feasts. So shall the waste cities be filled with flocks of men, and they shall know that I am the Lord. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 35 अध्याय 36 अध्याय हम पढ़ेंगे 20 है बाइबल में से। एदोम को परमेश्वर का दंड। 35 अध्याय पहले वचन से। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह सेईर पहाड़ की ओर करके इसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ कर दूंगा। मैं तेरे नगरों को खंडहर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि तू इस्राएलियों से युग युग की शत्रुता रखता था, और उनकी विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। इसलिए परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे हत्या किए जाने के लिए तैयार करूंगा और खून तेरा पीछा करेगा। तू तो खून से न घिनाता था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा। इस रीति मैं सेईर पहाड़ को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, और जो उसमें आता जाता हो मैं उसका नाश करूंगा। मैं उसके पहाड़ों को मारे हुओं से भर दूंगा, तेरे टीलों, तराइयों और सब नालों में तलवार से मारे हुए गिरेंगे। मैं तुझे युग युग के लिए उजाड़ कर दूंगा और तेरे नगर फिर न बसेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि तूने कहा है, ये दोनों जातियाँ और ये दोनों देश मेरे होंगे और हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे। यद्यपि यहोवा वहाँ था, इस कारण परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरे कोप के अनुसार और जो जलजलाहट तूने उन पर अपने बैर के कारण की है, उसी के अनुसार मैं तुझसे बर्ताव करूंगा। और जब मैं तेरा न्याय करूं, तब तुम में अपने को प्रकट करूंगा।
तो जानेगा कि मुझ यहोवा ने तेरी सब तिरस्कार की बातें सुनी है जो तूने इसराइल के पहाड़ों के विषय में कही। वे तो उजड़ गए, वे हम ही को दिए गए हैं कि हम उन्हें खा डालें। तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध बड़ाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत बातें कही हैं, उसे मैंने सुना है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब पृथ्वी भर में आनंद होगा तब मैं तेरा उजाड़ करूंगा। तू इसराइल का घराने के निज भाग के उजड़ जाने के कारण आनंदित होगा, इसलिए मैं भी तुझसे वैसा ही करूंगा। हे सेईर पहाड़, हे एदोम के सारे देश, तो जड़ जाएगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इसराइल पर परमेश्वर की आशीष। 36 अध्याय पहले वचन से। फिर हे मनुष्य के संतान, तो इसराइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कहे, हे इसराइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। इस कारण भविष्यवाणी करके कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लुतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। इस कारण हे इसराइल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से और उजड़े हुए खंडहरों और निर्जन नगरों से, जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लूट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है कि वह पराया होकर लूटा जाए। इस कारण इसराइल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों, पहाड़ियों, नालों और तराइयों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, तुमने जातियों की निंदा सही है, इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि निस्संदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी। परंतु हे इसराइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इसराइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इसराइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समय समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इसराइल तुम पर चली फिरेगी, और वे तुम्हारे स्वामी होंगे और तुम उनका निज भाग होंगे, और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश न हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो लोग तुमसे कहा करते हैं, तू मनुष्यों का खाने वाला है और अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश कर देता है, इसलिए अब तो मनुष्यों को न खाएगा और न अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश करेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं फिर जाति जाति के लोगों से तेरी निंदा न सुनवाऊंगा, और तुझे जाति जाति की ओर से फिर नाम धराई न सहनी पड़ेगी, और तुझ पर बसी हुई जाति को तू फिर ठोकर न खिलाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इसराइल का नया जीवन। 16 वचन से आगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इसराइल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपने चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनके चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता से जान पड़ती थी। इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई।
मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया और वे देश देश में बिखर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया, परंतु जब वे उन जातियों में पहुँचे जिनमें वे पहुँचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, हे यहोवा की प्रजा, ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहाँ वे गए थे। इस कारण तो इस्राएल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूँगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा अत्यंत उत्पन्न करूँगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूँगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ये 27 वचन को याद रखिए। हमारा आज्ञा पालन अपने बल अपनी शक्ति से नहीं है। ओके, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन देने वाला आत्मा हमारे अंदर आया, उसकी आज्ञा पालन करने वाला आत्मा हमारे अंदर आया, और हमारे अंदर इंस्ट्रक्शंस इकट्ठा करने वाला जगह हृदय, वो जगह ज़मीन भी नया परमेश्वर ने बना के दे दिया। ओके, जिसके अंदर ढिठाई थी पाप करने की, अशुद्धता करने की, वो बंद हो गई। ओके, जिसके अंदर हवा ने फल खाने की हिम्मत दिखाई थी, ओके, वो ख़त्म हो गई, और वहाँ पर क्या आ गया? परमेश्वर के वचन की पहचान होने वाला हृदय आ गया, कि परमेश्वर को हाँ करे और शैतान के इंस्ट्रक्शंस को इनकार करे। ठीक है। 28 वचन, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा, कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इस्राएल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। 33 वचन, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे, वे गढ़ वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेगी, वे जान लेगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा, और ऐसे ही करूँगा, ऐसा ही करूँगा। 37 वचन से आगे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं, जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां, अर्थात नियत पर्वों की समय यरूशलेम में की भेड़ बकरियां,
अनगिनत होती है, वैसे ही जो नगर अब खंडहर है वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी आंखों में, हमारी दृष्टि में हम पिता जैसा जीवन को देखते वैसा नहीं है खुदा। असली में जीवन तेरे वचन के अंदर है। तेरा वचन हमारी आंखों की रोशनी है जो हमें सच और झूठ के फर्क करके बताती है। महान है तू परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर लिखी बात सच है खुदा। तूने हमको तेरा आत्मा दिया और हम में से आज्ञा पालन करवाया। हम तेरा धन्यवाद करते, ना बल से ना ताकत से, पर तेरे आत्मा के द्वारा हम उद्धार में हैं। हम परमेश्वर के शांति में, नए सृष्टि में हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए है। हमारे शरीर के साथ कोई भी शैतान का कनेक्शन नहीं है। हमारे शरीर को कोई भी अशुद्धता और कोई पाप प्रभुता नहीं कर सकता है। हमारे शरीर को हमारा आत्मा संभालता है जो परमेश्वर के आत्मा के साथ एक हो चुका है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हमें मददगार हमारे अंदर रहने के लिए तूने दिया। हमारी हर बातों में सहायता करने वाला मददगार हमारे प्राण के लिए, हमारे शरीर के लिए। हम धन्यवाद करते हैं, हमारा जीवन बदल कर तूने नया सृष्टि बना दिया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद पिता। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी विनती प्रार्थनाओं को करते हैं कि हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 15 चैप्टर 1 वर्स से 10 वर्स। 1 क्रॉनिकल्स 26 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 15 अध्याय 1 वचन से 10 वचन। पहला इतिहास 26 अध्याय। हम पढ़ेंगे अकेले में बैठकर, पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में। ऐसा करने से परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को दुरुस्त करेगा, हमारे आत्मा की तंदुरुस्ती बढ़ाएगा। अगर हमारे आत्मा की तंदुरुस्ती और दुरुस्ती होती रहे तो उसके बाद हमारा शरीर का जीवन और प्राण का जीवन हम इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के वचनों के अधीन रखकर जी पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा अकेले में बैठकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, आराधना करना है, ओके। और ऐसे ही परमेश्वर के अंदर समय बिताना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे परमेश्वर से ज़्यादा हमारे आत्मा को ज्ञान, प्रकाश और उन्नति का रास्ता मिले। आमीन। बिना इसके हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस पृथ्वी के ऊपर। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत रूप में, पर्सनल टाइम में परमेश्वर को समय देंगे। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है सहायता करने के लिए। हमारी संगति में, सहभागिता में वो मौजूद है। निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।